Okay, fine. So let's start again. Relog in. See that now. Internal access specifier. So have you know of now public, private, protected, and now it is internal access. So last one is the protected internal access specifier. See, this is the allows a class to hide its member variable. उसके मेंबर वेरिएबल हाइड करना है, जैसे हम लोग ने वी आर यूजिंग ओवर देयर प्राइवेट और वो हाइड करते हैं, वैसे ही आप इंटरनल पार्ट को सम ऑफ द पार्ट्स वी हैव टू हाइड, so we have to write their protected internal, that is its member variables are hide or maybe member functions hide from other class object and function except a child class within the same का only क्या होगा, जो derived class रहेगा वो execute कर सकते, बाकी सब क्लास के लिए क्या हो सकता है, वो हाइड. That's why protected internal. It is just like protection. Same thing. Only they are writing internal. It allowed to access in any other class their member and function. But protected means only derived class. Got it? Hello? Yes, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. चलो next. Now methods. ये आपका पार्ट है type, objects, methods, namespace. That is in your ASP.NET also. So listen carefully. Method. You know the methods means पहले हम लोग functions बोलते थे in C, C++. Now it is method. So it is a group of statement that together perform a task. So every C# program has at least one class with a method name main. होता है, तो हर एक मेन मेथड को में हमारा एक मेन मेथड यूज होता है हर एक प्रोग्राम में, हर एक क्लास में. सो दैट इज यार दे आर शोइंग ओवर दैट कि मेथड क्या करता है, इट मेक्स द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो मेथड बनाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हम लोग क्लास के अंदर कर सकते. बट ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट बनाने हैं तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, एंड देन वी आर टू डिक्लेयर मेनी स्टेटमेंट एंड बिल्ड टुगेदर. दैट इज कॉल्ड मेथड. To use a method you need to define a method and call the method. हम लोग को method define करना है और call करना है. So when you define a method you are basically declare the elements of its structure. Syntax for defining a method in C# is as follows. They are giving following are the various statements of a method is given. एक क्या क्या डिक्लेरेशन के लिए पार्ट लगते हैं वो देखो. मेथड कैसे, एक एक्सेस स्पेसिफायर अभी बताया, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, internal, protected internal. These are all the access. Return type, of course, integer, double. हम लोग ये करते हैं तो return type. So it should return the value. तो return keyword use करना पड़ता है. So that's why return या type, that is your double, int, जो भी आप string declare करते हो. After that method है. अगर हम लोग ने कुछ भी return type नहीं रखा तो हम लोग क्या रखते हैं हमेशा, void. क्या लिखते हैं, void. देन मेथड नेम, मेथड नेम वाइड के बाद या रिटर्न टाइप के बाद आप लोग लिखते हो मेथड नेम. कोई भी नेम आप डिक्लेयर करो, मेथड नेम इज यूनिक और इट इज यूनिक आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होना चाहिए. हमेशा आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव, कैन नॉट बी सेम एज एनी अदर आइडेंटिफायर डिक्लेयर इन द क्लास. तो आपका दूसरे उसी क्लास के अंदर दूसरा अगर मेंबर का नाम सेम है तो वो अलाउड नहीं करेगा. दैट्स व्हाई मेथड्स नेम आर नॉट से, इट इज यूनिक आइडेंटिफायर. फिर पैरामीटर लिस्ट इन द ब्रैकेट we are declaring the variable values, declaring int a, int b, string a. So this is all parameters. उसको क्या बोलते हैं, parameter. Parameter list in the bracket. It is always enclosed between the parentheses and we have to declare many parameters. So we can use comma or separately. Optional is there, so semicolon, and we can use there separately optional part in the parameter also. Then method body, in curly bracket we are using the method body. So this is syntax of how to declare. If you are saying they are explaining the methods, how you define, you have to say all that syntax of the, this way you have to write the answers. Okay, then defining होने के बाद आप क्या करते हो, call. जैसे example they are given how they declare. एक class है number manipulator, public access specifier, return type int. After that find max is just one of the method name declared, parameter int num1 comma int num2. In curly bracket they declare the method body statement block of the statement. So int result,
if num1 is greater than num2, the result num1, else result num2. Who is greater than, find maximum value, they should return the value. So return क्या किया है उन्होंने, result. So what is the result our, एक तो result num1 आएगा, नहीं तो num2 आएगा. num1 कब आएगा, जब हमारा number 1 greater than num2 रहेगा तब. So this is the returning value inside it. तो जहां पे भी ये कॉल मेथड जाएगा फाइंड मैक्स, वहां पे दो नंबर हम लोग असाइन करेंगे और वहां पे वो उनको रिटर्न वैल्यूज क्या आएगा, दे हाउ दे कॉल देयर, सी दैट नाउ कॉलिंग मेथड, कॉल कहां पे किया है, यही प्रोग्राम. इन अ मेन मेथड they assign int a equal to 100, int b equal to 200 and int return value. तो in return value they store that value. क्या स्टोर किया है, n dot find max. n किसका नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है आपका, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास का नाम, नंबर मैनिपुलेटर. n इज इक्वल टू न्यू मैनिपुलेटर, इसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट. n इज योर ऑब्जेक्ट, उसका मेंबर n डॉट फाइंड मैक्स, बिकॉज इट इज पब्लिकली डिक्लेयर, इसके लिए वो मेन मेथड में आ गया. और इन द फाइंड मैक्स दो पैरामीटर ए एंड बी, वो ए एंड बी असाइन क्या करेगा, नंबर 1 इज इक्वल टू ए, नंबर 2 इज इक्वल टू बी. और ए बी की वैल्यू क्या होगी, 100 एंड 200. तो नंबर 1 100, नंबर 2 चेकिंग 100 इज ग्रेटर देन 200, नो. सो ये एग्जाम्पल, चलो हम लोग ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं ताकि हम लोग को आंसर्स मिले क्या आता है. Okay, fine. So go on Visual Studio, file, close the solutions, stop debugging, go on file, new project, go on Visual C Sharp, go on console application, whatever console applications, we can give their console application namespace, they are given here. यहाँ पे उन्होंने दिया है calculator applications, so we can use that application, calculator application over here. Okay, now click on OK. After that we are right click on there, click on add. Sorry, already it is program name, it is given over there. That program name, if you want to change that program name, we can use here number manipulator, ये दिया है ना. तो यहाँ से ही हम लोग पूरा प्रोग्राम चेंज करते हैं, लेते हैं. सॉरी, this is the program related console dot read line, copy. See that now, यहाँ से पूरा प्रोग्राम में ये ले रहा हूँ, paste. So it is your program. See that now, over. Now see that now, programs output क्या बताया उन्होंने, int रिजल्ट लिया है, num1 ग्रेटर देन num2 होगा तो रिजल्ट में num1 आएगा, else रिजल्ट इज इक्वल टू num2, रिटर्न रिजल्ट. लेकिन ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे, दैट इज ret इज इक्वल टू n डॉट फाइंड मैक्स a comma b. So the value is passing 100 and 200, it should return the value over here, and वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं. मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा इंटरवल है जिसमें हम लोग ने इंटीजर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यहाँ रिटर्न किया हुआ वैल्यू शो कर रहे हैं. एंड देन रीड लाइन. सो रन द प्रोग्राम. व्हाट द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 200. गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो हेलो स्टूडेंट. यस सर. अरे यस सर. यस सर. देख रहे हो ना आप लोग, हर एक चीज. हाँ सर. हाँ सर इधर ही है. इधर ही है. ओके, देख रहे हो ना. तो दिस इज द वे हाँ सर. दैट इफ लूप आल्सो. अभी मेथड भी बताया, मेथड कैसे यूज होता है, हाउ दे रिटर्निंग द वैल्यू. गॉट इट? यहाँ पे असाइनिंग किया हुआ वैल्यू रिटर्न हो रहा है. ये प्रोग्राम कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे. जो भी आंसर यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू वहां पे स्टोर हो रहा है. व्हाट इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इट शुड रिटर्न द वैल्यू. क्योंकि हम लोग ने int लिया है, लेकिन अगर इधर हम लोग ने void लिया होता था तो हम लोग का रिटर्निंग वैल्यू आता था क्या, नहीं. तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लेना ही नहीं पड़ता था, यहाँ पे ही हम लोग को फाइंड मैक्स a कॉमा b लेना पड़ता. व्हाट इट, समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? कि अगर हम लोग ने सपोज तो यहाँ पे हम लोग ने ये दे दिया इंटीजर की जगह क्या दिया, void. अभी हम लोग रिटर्न को भी कमेंट दे देते क्योंकि रिटर्निंग वैल्यू नहीं हो रहा है, एक्चुअली रिटर्न हो. तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड मैक्स इसकी जगह पे
क्या लेना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट देता हूँ, कॉपी करता हूँ फाइंड मैक्स, और इसकी जगह पे अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा बता मुझे, फाइंड फाइंड मैक्स मैक्स ए और कॉमा बी। पासिंग करना था a कॉमा b, दैट इज कॉल्ड वी आर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, मेथड को डिक्लेयर करें। गॉट इट, समझ में आया? मेथड ये कॉल। फाइंड मैक्स का स्टोरेज जो भी सर है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, बिकॉज सेमीकोलन रिक्वायर्ड, नो फाइंड मैक्स a कॉमा b मेथड को वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं, रिटर्न के अंदर, लेकिन रिटर्निंग वैल्यू तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली आना चाहिए था फाइंड मैक्स। ये फंक्शन यहाँ पे वैल्यू सर दिखाएगा एन डॉट, नहीं, ए डॉट का सवाल ही नहीं। अच्छा एन डॉट बराबर है, एन डॉट फाइंड मैक्स, मैक्स वो भी नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया लेकिन इट शुड रिटर्न, ऑब्जेक्ट को स्टोर करके करते हैं, सपोज RET, हाँ सर। ये वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करके करते हैं, चेक करते हैं RET, ओके बट ये नहीं ले रहा है वो फाइंड मैक्स a कॉमा b, क्योंकि वो पासिंग ही नहीं कर रहा है वैल्यू वहां से ही। तो ऑफकोर्स तो हम लोग को ये असाइनिंग वैल्यू भी उधर जा नहीं रहेगा, इनिशियलाइज हो सकता है लेकिन वो रिटर्निंग वैल्यू फाइंड मैक्स कैसे डालेंगे। ठीक है एक काम करते हैं, फाइंड मैक्स a, वो भी नहीं, इट शुड वॉइड में क्या होता है, डायरेक्टली कॉल होना चाहिए ना, तो हाँ सर। यहाँ पे हम लोग फाइंड मैक्स a कॉमा b, सो इसको वैल्यू तो रिटर्न ये 0 0 लेने की भी जरूरत नहीं है, सर फाइंड फाइंड ये बराबर है, बट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन उसमें आना चाहिए था। ठीक है एक काम करते हैं, कोड्स नहीं देते तो भी नहीं हो रहा है। ओके एक काम करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह डायरेक्टली फाइंड मैक्स a कॉमा b ये कॉल करेंगे और वैल्यू स्टेटमेंट इधर नहीं डिस्प्ले करेंगे, वैल्यू स्टेटमेंट यहाँ पे इधर ही डिस्प्ले। तो बराबर ना, हाँ सर। राइट लाइन यहाँ पे ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, मैक्स रिजल्ट इज और करली ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं, बराबर। रिजल्ट अभी देखते हैं, हाँ सर। बराबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा और डायरेक्टली वी कॉल इट ओवर हियर। हाँ यहाँ पे हम लोग एन डॉट अभी कॉल कर सकते हैं, एन डॉट फाइंड मैक्स, सॉरी फाइंड मैक्स था हमारा, एन डॉट भी ओके किया अभी ऑब्जेक्ट को, यस सर। मिल रहा है, यस सर। आया आउटपुट कैसे हाँ। किया, ऑब्जेक्ट को कॉल किया लेकिन यहाँ पासिंग वैल्यू वहां पे जा रहा है और रिटर्निंग वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली पूरा का पूरा फंक्शन। गॉट इट? यस सर। यस सर। ऐसे प्रोग्रामिंग को आपको सीखना है। गॉट इट? यस सर। मेरी क्या प्रैक्टिस नहीं है, आई एम डिलीवरिंग डायरेक्टली बिकॉज आई नो द लॉजिक एंड सिंटैक्स। ओके यस गॉट सर। इट? या चलो नाउ विल कंटिन्यू, आउटपुट आ गया आपको, आगे जाते हैं। चलो नेक्स्ट वन पार्ट इज देयर, यहाँ पे उन्होंने दिया वहाँ न्यूमेरिक वैल्यूएटर आप लोगों ने किया, आगे ओके ये पार्ट हो गया ना। रिकर्सिव मेथड, अभी हम लोग को रिकर्सिव मेथड लिखना है। रिकर्सिव मतलब क्या होता है बता मुझे, मेथड में रिकर्शन होता है। व्हाट डू यू मीन दैट? मेथड कैन कॉल इटसेल्फ, उसी मेथड में असाइन करते वक्त, डिफाइन करते वक्त उसी को उसके अंदर कॉल करना, मतलब क्या होता है, रिकर्शन। गॉट इट? क्या होता है कि आपका जहां पे मेथड डिक्लेयर हो रहा है, नाम असाइन हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, उसी के अंदर उसको कॉल करना, उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव। रिकर्सिव। भाई समझ में रिकर्शन क्या होता है कि मेथड के अंदर उसी मेथड यस सर। को कॉल करना, कॉल इटसेल्फ। नाउ यू गॉट इट? तो एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, वो देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ दिया हुआ है कि क्लास वापिस नंबर मैनिपुलेटर लिया है, फिर पब्लिक int फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू आएगा, int है तो एक वैल्यू पास होगा वो फैक्टोरियल में आएगा। रिजल्ट वी हैव टू असाइन करना है,
तो उधर पहले चेक हो रहा है, अगर फैक्टर नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो रिटर्निंग 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। लेकिन एल्स नहीं है, अगर 5 है तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नंबर पहले माइनस होगा, 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 1 वो कह रहे, देन आगे आगे वापिस जाएगा 4 माइनस 1 3, देन 4 पहले किया हुआ वैल्यू को उसको वापिस इंटू करेगा एंड देन 120 ऐसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 उसका वैल्यू फैक्टोरियल नंबर्स उसका डिक्लेयर होगा, बराबर है। सो दिस वे वी कैन क्रिएट रिजल्ट एंड इट शो इन द रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो रिटर्निंग वैल्यू बट रिकर्सिव। रिकर्सिव क्यों, बार बार इसी मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, वापिस रिपीट कर रहे हैं, इसलिए उसको रिकर्शन बोलते हैं। मेथड के अंदर उसी मेथड को कॉल करना उसको बोलते हैं रिकर्शन। लेट्स वी सी द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोग्राम यहाँ पे यही इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी, देखो यहाँ पे रिजल्ट फैक्टोरियल बनाया हुआ है। इफ एल्स का प्रोग्राम इसीलिए है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही रिटर्न करेगा, और 1 नहीं है 2 इंटू 1 करने के लिए डबल उसको फैक्टोरियल रिपीट होगा। 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसलिए वो रिपीट करेगा एल्स में। जो भी वैल्यू रिटर्निंग होगी वो वैल्यू यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एन का ऑब्जेक्ट बन गया, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट, ये नंबर वैल्यूएटर इज अ क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, n इज इक्वल टू न्यू नंबर वैल्यूएटर। फिर उसके बाद उन्होंने कंसोल राइटर ने फैक्टोरियल ऑफ 7, तो उन्होंने पासिंग वैल्यू देखो 7, हम लोग 5 लेते हैं पहले, फिर 2 लेते हैं, सॉरी 3 लेते हैं, तो चेकिंग होगा बराबर। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 और फैक्टोरियल ऑफ 3, ताकि हम लोग फैक्टोरियल में क्या आता है वो आंसर मिलेगा। 5 का 120 कुछ आएगा, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 आएगा। ओके, गॉट इट। चलो चेक करते हैं सर आंसर्स। देखो राइट, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 और 3 का 6 आया, 126 गॉट इट। और लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हुआ, उन्होंने रिकर्शन किधर किया है, जहां पे मेथड्स ये डिक्लेयर मेथड्स है। उधर ही वो उसको कॉल कर रहे हैं। अंडरस्टूड? So it repeats Yes, sir. again and again. Method repeats again and again because it is recursion. Clear about the recursion? Yes, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So आगे ये define हुआ, call हुआ, आपको recursion बताया. This is all related what? Methods. Method. अभी passing parameters to a method बताने. Passing parameter जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर पास कर रहे थे, अभी भी passing वैल्यू किया. किधर किया पासिंग बताओ मुझे, जहां पे हम लोगों ने लिखा था फैक्टोरियल, नीचे देखो ये पासिंग वैल्यू, दिस इज पासिंग, 5 इज अ पासिंग, एंड कहाँ पे वो स्टोर हो रहा था, असाइन हो रहा था int num, तो num इज इक्वल टू क्या बन रहा था 5, दैट इज कॉल्ड पासिंग। तो पासिंग पैरामीटर में हम लोग ने वैल्यू पास करते हैं और वो पासिंग वैल्यू असाइन होता है एंड देन इट वर्क्स इन द स्टेटमेंट। सो व्हेन मेथड द पैरामीटर इज कॉल्ड, यू नीड टू पास द पैरामीटर टू मेथड्स। सो यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर होते हैं, अभी वैल्यू पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे वैल्यू पैरामीटर में क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी पैरामीटर जो है, सॉरी पास आउट, ओके, सो सी दैट नाउ वैल्यू पैरामीटर, यहाँ पे int x int y, ये एक स्वैपिंग नंबर का प्रोग्राम है, तो पता होगा स्वैप 2 नंबर्स, ओके, ये प्रोग्राम है, हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर पासिंग पैरामीटर की है, किधर किया है पासिंग पैरामीटर, यहाँ पे एडमिट, देखो एडमिट क्या किया हुआ है, स्वैप में int x एंड y दिखाई दे रहा है, स्वैप में int x एंड y, ये 2 पैरामीटर स्वैप के मेथड में पास किए गए, वेयर वी आर जस्ट असाइनिंग दैट वैल्यू। उसके बाद उनका टेम इज इक्वल टू, आपको मतलब स्वैप के प्रोग्राम है, टेम इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टेम, तो एक दूसरे से वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है। आफ्टर दैट वी आर असाइनिंग द वैल्यू इन द मेन मेथड, पासिंग दैट वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हो ए और बी को हम लोग पास कर रहे हैं,
तो यहाँ एक्चुअल में पासिंग यहाँ पे कॉल हुआ है क्या? यहाँ पे कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। पासिंग किधर हो रहा है? यहाँ पे स्वैप ए कॉमा बी। जब यहाँ पे वैल्यू जो दे रहे हैं वो इधर का ही वैल्यू, ओके, लेकिन जब ये पासिंग वैल्यू जा रहे हैं तब वो वहां का वैल्यू दिखा रहे हैं और इट असाइन डायरेक्टली x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू x, गॉट इट? और वो वैल्यू जो आ रहे हैं वो इधर आ रहे हैं। अंडरस्टूड? देख लेते हैं ये प्रोग्राम हम लोग। यस सर। स्वैप का प्रोग्राम देख लेते हैं। चलो देखते हैं। see the swap program. I just copy, यही प्रोग्राम में हम लोग यूज कर लेते हैं, पेस्ट। now we can see public void swap int x int temp is equal to temp and temp is equal to x, x is equal to y, y is equal to temp. this is the swap method. मेन में असाइन कर रहे a 100 and b 200, a का वैल्यू 100 है, b का वैल्यू 200 है। बिफोर स्वैपिंग वो शो कर रहा है वैल्यू, और फिर आफ्टर स्वैपिंग देखो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, पासिंग वैल्यू स्वैप किया, फिर आफ्टर स्वैप ए बी का वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है। देन वी कैन सी दैट आउटपुट 100 200 ए का वैल्यू और बी का वैल्यू था, वो चेंज हो गया। अभी ए का वैल्यू 100 है और बी का 200 है आफ्टर स्वैप। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। So this way we have to see the program कि आपको पता है वैल्यू पैरामीटर, अगेन रेफरेंस पैरामीटर। क्या होता है? रेफरेंस पैरामीटर। रेफरेंस, ओके, रेफरेंस पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन। किसे करता है रेफरेंस? मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन, आपके हार्ड डिस्क की जिधर लोकेशन होती है वहां वो रेफरेंस करता है। इसलिए उन्होंने देखो पासिंग वेरिएबल के सामने उन्होंने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? REF, बराबर। हम लोग कैसे पॉइंटर देके हम लोग रेफरेंस वेरिएबल देते थे ना, पॉइंटर C प्लस प्लस में, C में, सेम लाइक दैट हियर। व्हाट इज दैट? REF कीवर्ड, रेफरेंस पैरामीटर यूजिंग REF कीवर्ड। व्हेन यू पास द पैरामीटर बाय रेफरेंस, अनलाइक वैल्यू पैरामीटर, न्यू स्टोरेज लोकेशन इज नॉट क्रिएटेड। एक नया स्टोरेज लोकेशन क्रिएट नहीं होता है। रेफरेंस पैरामीटर में लोकेशन सेम मेमोरी लोकेशन होता है। एक्चुअल पैरामीटर दैट इज that are supplied to the method. Understood? मतलब जो जगह मेमोरी यूज होती है ना वो सेम मेमोरी में यूज होता है। जैसे एक ही 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए जो लोकेशंस लिया है वही में वापिस 200 स्टोर करने के लिए भी लेगा। सेम जगह चेंज नहीं, मेमोरी चेंज नहीं होगा, ओनली वैल्यू चेंज होगा। अंडरस्टूड? एक का जो मेमोरी ए स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज हुई वो मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगा, वो वाली वैल्यू चेंज करेगा, इसीलिए उसको रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन पहले वैल्यू पैरामीटर में क्या था? उसको अनदर लोकेशन लेता है, दूसरा कोई मेमोरी लोकेशन लेगा, इसमें वो दूसरा लोकेशन नहीं लेता है। दैट्स व्हाई रेफरेंस पैरामीटर। गॉट इट? सेम प्रोग्राम बट खाली उन्होंने क्या यूज किया हुआ है? रेफरेंस। तो हम लोग को अगर चेंज करना है प्रोग्राम तो यहाँ लोकेशन में हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पे ये देखो REF, देन अगेन REF रेफरेंस, और पासिंग करते वक्त भी क्या लेंगे बताओ? रेफरेंस ए, रेफरेंस बी। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। एक ही मेमोरी में दो मेमोरी यहाँ यूज हुए तो दो ही मेमोरी यूज होगी, 4 मेमोरी यूज नहीं होगी। अंडरस्टूड? अलग अलग वैल्यू स्टोर करने का 4 मेमोरी नहीं होगी, दो ही मेमोरी यूज। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पैरामीटर। गॉट इट? समझ में आया? स्टूडेंट? ओके, सो this way we have seen the reference. Then last one, output parameter. This method help in only returning more than one value. जब आपको एक से ज्यादा जब वैल्यू रिटर्न करना होता है तब हम लोग ये आउटपुट पैरामीटर लेते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट कैन यूज फॉर रिटर्निंग ओनली वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट कितना वैल्यू रिटर्न करता है? एक ही। रिटर्न कीवर्ड एक वैल्यू रिटर्न करता है। बट जब भी हम लोग को ज्यादा अगर करने होते हैं आउटपुट तो यू कैन रिटर्न 2 वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन एंड दिस आर सिमिलर टू रेफरेंस पैरामीटर बट एक्सेप्ट दैट इट ट्रांसफर डेटा आउट ऑफ मेथड रेदर देन इनटू इट। उसके अंदर ट्रांसफर डेटा ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख लो आप। एग्जांपल में यहाँ टेम गेट वैल्यू 5 लिया है, x इज इक्वल टू टेम किया हुआ है। आफ्टर दैट दे आर यूजिंग a वैल्यू ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोगों ने a वैल्यू आउट करके देखो, दिस इज द कीवर्ड ऑफ आउट पैरामीटर, ए करके डिक्लेयर किया है।
और वो कॉल वैल्यू यहाँ जा रहा है, वो रेफरेंस पैरामीटर की तरह ही है, लेकिन यहाँ देख सकते हो ये पहले ए के अंदर 100 था, अभी ए के अंदर क्या स्टोर हुआ, ए के अंदर क्या स्टोर हुआ 5, बराबर ना। तो ये ए के अंदर हम लोगों ने ए का एक्स का वैल्यू जो है वो सेम रिटर्निंग कीवर्ड से यूज किया हुआ है। बट इट समझ में आया? जैसे यहाँ देखते हो मोर देन 1, यहाँ पे ए और बी दिया है, तो गेट वैल्यूज में देखो उन्होंने क्या दिया है, एक ही वैल्यूज में एक्स और वाई दिए हुए, वह दो वैल्यूज रेफरेंस में आउट दे रहे, आउट आउट। तो कॉलिंग आउट फंक्शन आउट पैरामीटर में क्या हो रहा है, दो वैल्यू रिटर्निंग कर रहा है। ओके, क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. Okay, fine. So this is the functions, methods related program and their parameters value. Got it? आया समझ Yes, में? sir. ये कोई डाउट है अभी तक? कोई पूछ सकता है कि No, बाद में sir. कनेक्टिविटी चला जाता है फिर डाउट क्लियर नहीं करते, तो अभी कोई डाउट है तो बोल सकता है। पासिंग पैरामीटर भी मैंने क्लियर किया। चलो बोलो जल्दी, कोई है? Yes, student? Anyone? No, sir. का? Yes? पक्का सर। डाउट है कोई तो बोलो, कोई है डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. ओके फाइन। सो दिस वे वी हैव टू लर्न द बेसिक पार्ट ताकि हमारा आगे का पार्ट क्लियर कर सके। ओके, सो बेसिक में अभी यहाँ तक हम लोगों ने मेथड तक, मैंने बोला था आज नल क्लास ऑब्जेक्ट और आपका मेथड क्लियर होगा, तो आपका मेथड तक मैंने क्लियर किया हुआ। आगे नलेबल, एरे स्ट्रक्चर, वो सब हम लोग क्लियर करेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, नेमस्पेस, वो सब क्लियर ही करेंगे। और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वापिस प्रैक्टिकल सेशन में ASP.NET के प्रैक्टिकल सेशन में जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने दूसरा प्रोग्राम प्रैक्टिकल नंबर 3 1C प्रैक्टिकल नंबर 1 ही है लेकिन 1C, जहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई दैट रिसीव स्टूडेंट आईडी, student name, course name, date of birth, and here we have to set the students data, and that you should display in the all student once the data is enter। मतलब आपका जैसे डेटा एंटर होगा, यहाँ पे जैसे एंटर हुआ डिस्प्ले पे क्लिक किया कि ऊपर वैसे ही उसका डेटा स्टूडेंट आईडी 1 और वो सब डेटा दिखाई देगा। गॉट इट? सेकेंड स्टूडेंट का डेटा एंटर किया, अगेन दे कंटिन्यू द सेकेंड स्टूडेंट डेटा, दैट इज द आउटपुट वी हैव टू शो। तो यहाँ आप देख सकते हो एक लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, अगेन 1 लेबल टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे कितने लेबल है 1 2 3 4 लेबल्स, 4 टेक्स्ट बॉक्स। और आउटपुट के लिए उन्होंने जैसे ये किया लेकिन वहां यूज नहीं किया है, आगे इंसर्ट क्लिक करना है, फिर डिस्प्ले। इंसर्ट मतलब रिकॉर्ड ऐड होता है एंड डिस्प्ले होता है। तो ये प्रोग्राम हम लोग को देखना है, तो वो प्रोग्राम के लिए हम लोग पहले डिजाइन कर लेते हैं फिर कोडिंग लिख लेते हैं। गॉट इट? चलो विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। ये ASP.NET है हमारा, C# नहीं है। तो क्लोज, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, गो ऑन विजुअल C#, वेब, ASP.NEट एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। कौन सा प्रैक्टिकल है हम लोग का, बोलो? प्रैक्ट 1C. 1C. प्रैक्ट 1C। ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, एंड देन वेब फॉर्म को अगर नाम देना है हम लोग को वो नाम दे सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है स्टूडेंट डेटा। क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट डेटा। हम लोग भी नाम देते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड, आ गया। नाउ डिजाइन पार्ट में क्या क्या बोला था हम लोग को, लेबल देना है। तो पहला एक लेबल, पहला लेबल क्या था लेबल, तो प्रॉपर्टीज, F4 फॉर प्रॉपर्टीज। F4 फंक्शन की डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ गया। राइट साइड में हम लोगों ने प्रॉपर्टी दिया आईडी। देन आईडी के नीचे लेना है तो नीचे ले सकते हो, साइड में देना है तो साइड में दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। डिजाइन पार्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन आफ्टर दैट वी कैन गेट द टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स 1। चलो आगे कंटिन्यू। इसके बाद आईडी के बाद क्या देना था उन लोग को, क्या है, स्टूडेंट नेम।
So we are getting another label, another label 2. लेवल 2 में प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, वहां लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगेन वी आर गिविंग हियर नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट नेम के बाद दे अनदर टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद क्या है, स्टूडेंट कोर्स नेम। राहुल चंदा नेटवर्क गया रहेगा। आगे सर माइक आगे, बंद है, सर माइक बंद है, सर माइक बंद है आपका। सर माइक बंद है। सर माइक बंद है आपका। Yes, किया on. Okay. Again, I am sharing. Yeah. The another again. First one now. उसके बाद क्या है हमारा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए वापस क्लिक कर रहे हैं टूल बॉक्स, देन गो ऑन द लेबल, ओके, देन अगेन गो ऑन द प्रॉपर्टी, वहां पे हम लोग देते हैं डेट ऑफ बर्थ, then go on toolbox again, then text box में जाओ, सॉरी, और यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्स। अभी हम लोगों को क्या रिक्वायर है, 2 बटन, इंसर्ट एंड डिस्प्ले। तो जाते हैं बटन के लिए, क्लिक ऑन बटन, उसके बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखते हैं इंसर्ट, ओके, देन अगेन टूल बॉक्स, वहां पे नेक्स्ट बटन प्रॉपर्टी में लिखते हैं, सॉरी स्पेस देखिए, क्लिक हो गया, वेट, या ना बटन, यहाँ पे डिस्प्ले, फाइन, क्लियर। हाँ, अभी कोडिंग पार्ट हम लोग को देखना है। तो कोडिंग पार्ट में उन्होंने दिया क्या है, सो दे आर यूजिंग फर्स्ट अपॉन स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्ट करके कीवर्ड, मतलब स्ट्रक्चर पार्ट क्लियर किया है जो आगे हम लोग को सीखना था। ओके, नाउ दे आर डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक आपके सारे वेरिएबल्स को इट बिल्ड टुगेदर, फिर उस ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करके वो सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ असाइनिंग या यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग स्ट्रक्चर। So that structure part is there first. Just press copy and go in the coding. ये कहाँ पे यूज करना है हम लोग को, नेम स्पेस क्लास के पहले। तो ये नेम स्पेस के बाद क्लास के अंदर मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्टूडेंट करके, फाइन, यस स्टूडेंट, क्लियर, यस सर। that is structure. What they are declaring over there, string value, student id, name, course name, string, again date of birth, okay, so there are 4 string values they are declared over there। चलो आगे जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एक एरे बनाया हुआ ऑब्जेक्ट का, तो स्टूडेंट का एरे बनाया एज न्यू ऑब्जेक्ट, और 5 एरे लिया, मतलब 5 स्टूडेंट मेंबर्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए एरे दिया है। और एक में उन्होंने आई करके डिक्लेयर किया है, फॉर लूप के लिए वगैरह लगने वाला है, इसके लिए कहाँ पे डिक्लेयर किया है ये, पेज लोड के पहले, फाइन। तो दे आर डिक्लेयरिंग द एरे स्टूडेंट, किसका एरे क्रिएट हुआ, स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट हुआ, वो ऑब्जेक्ट बने, कितने एरेज में वैल्यू ले रहे हैं, 5, गॉट इट, 5। अभी बटन, पहला बटन जो इंसर्ट बटन है उसके लिए कोडिंग, सो वी जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, उसके अंदर कोडिंग है कि हम लोगों ने आई की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले, ओके, या आई की वैल्यू है वो असाइन होगी, स्टूडेंट आईडी असाइन होगा, स्टूडेंट नेम असाइन होगा, कोर्स नेम असाइन होगा, डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए उन्होंने एरे की फर्स्ट वैल्यू S0 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, H0 टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, H0, ये H0 ही क्यों है, क्योंकि एक मेंबर का पूरा डेटा इधर आ, फिर इंक्रीमेंट बाय 1, ऐसे जितने भी स्टूडेंट का आप इंसर्ट करोगे वो इंसर्ट के अंदर यही काम होगा, एरे 0, H0, S1, S2, S3, S4 ऐसे करके, गॉट इट, यस स्टूडेंट, समझ में आया। और ये प्लस आई का कर रहा है, कुछ 0 आईडी को भी दिखा रहा है, मतलब स्टोर कर रहा है आई के वैल्यू 0 को, इसके लिए 0, 1, 2 उसको भी स्टोर, ताकि आईडी भी हम लोग दिखा सकें। अभी सेकेंड कोडिंग है आपका डिस्प्ले,
तो डिस्प्ले के अंदर क्या है, फॉर लूप हम लोग यूज कर रहे हैं. देन इनसाइड हियर हम लोग फॉर लूप में वी आर डिस्प्लेइंग दैट वैल्यू. हम लोग को डिस्प्ले करना है उधर ही डिस्प्ले करने के लिए. देखो ASP.NET में डिस्प्ले पार्ट कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं है. क्या है हमारा? हेलो, मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ी देर के बाद कॉल करूँ 10:30 के. या सो आपको रिस्पॉन्स डॉट राइट, देखो डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट राइट. हम जो भी वैल्यू फॉर लूप में आई y इज इक्वल टू 0, तो y का पहला वैल्यू आ रहा है, y का पहला डेटा 0 0 0 0 की वैल्यू उधर डिस्प्ले हो रही है. फिर 1 फर्स्ट स्टूडेंट, 0 का फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, 1 का सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा है. कंटिन्यूशन, नेक्स्ट, कॉपी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. देखो s array स्टूडेंट आईडी, sy डॉट नेम, sy डॉट सी नेम, sy डॉट डेट ऑफ बर्थ. चलो अभी रन करते हैं और चेक कर लेते हैं प्रोग्राम में हो क्या आ रहा है. ओके, आउटपुट आ गया. तो हम लोग पहले स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट नेम विपिन, कोर्स नेम TY BSc IT, डेट ऑफ बर्थ 10/01/1979 एंड इंसर्ट हुआ या दिखाई दिया i इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्लस i किया हुआ है. देन डिस्प्ले में देखो स्टूडेंट आईडी 1 क्रिएट हुआ क्योंकि एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट हुआ है, इसके लिए 1 आया. क्या i प्लस प्लस ना, तो 1 आया. फिर बिपिन TY यहाँ रिकॉर्ड दिखाई. अभी सेकेंड स्टूडेंट 2 साची TY BSc IT 14/9/2008. ओके, देन इंसर्ट एंड डिस्प्ले. देखो दो रिकॉर्ड दिखाई दे रहे, पहला वाला भी रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले में भी और रिकॉर्ड कंटिन्यू स्टोर होगा एरे के हिसाब से. ऐसे कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोगों ने 5 एरे तक अलाउड किया. गॉट इट स्टूडेंट? यस Yes, sir. थर्ड प्रैक्टिकल 1C. ओके